خوش ہوتا ہے اور کلیسیا کو جو چلا رہا ہے پاسبان کب خوش ہوتا ہے؟ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ دوسرا تسلیکیوں اس کے پہلے باب کو توجہ کے ساتھ اس کی تیسری آیت سے پڑھیں گے اور ان باتوں کو نا اپنے توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور یہ نیکسٹ اتوار پوچھی جائیں گی، اور جو یاد کرے گا اسے گفٹ ملے گا، یہ پکی بات ہے جی۔ ہاں جی، اس اے بھائیوں، تمہارے بارے میں ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، اور یہ اس لیے مناسب ہے کہ تمہارا ایمان بہت بڑھتا جاتا ہے اور تم سب کی محبت آپس میں زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ آمین۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ یہاں پر مقدس پولس فرماتے کیا ہیں؟ مقدس پولس فرما رہے ہیں اے بھائیو تمہارے بارے میں، کن کے بارے میں بلا؟ کلیسیا کے بارے میں، کہیں میرے بارے میں، کہیں میرے بارے میں۔ اب یہاں پر خدا کا خادم مقدس پولس کلام جب بیان کر رہا ہے، کلام جب سنا رہا ہے تو کیا بیان کرتا ہے؟ اے بھائیو تمہارے بارے میں ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے۔ خدا کے خادم کا کام کیا ہے؟ جب کلیسیا بڑھتی ہے کس میں؟ ایمان میں۔ چرچ بڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کلیسیا ایمان میں نہیں بڑھے گی۔ چرچ جتنا مرضی بڑا ہو، جتنی مرضی گیدرنگ ہو، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے جب تک ایمان میں کلیسیا نہ بڑھے۔ لیکن آج ہمارے جو ارد گرد کا ماحول ہے، ہم اس میں شکر گزاری کرتے جب کوئی ویپر مقدار میں چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ آمین۔ اب یہاں پر مقدس پولس فرماتے ہیں اے بھائیو تمہارے بارے میں ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر کیا ہو چکا ہے؟ فرض ہو چکا ہے۔ کیوں فرض ہوا ہے؟ اور یہ اس لیے مناسب ہے کہ تمہارا ایمان بہت بڑھتا جاتا ہے۔ آمین۔ فرض ہے اسی لیے کہ تمہارا ایمان بڑھ رہا ہے، تمہارا ایمان بڑھ رہا ہے۔ جب کلیسیا کا ایمان بڑھتا ہے، جب کلیسیا ایمان میں مضبوط ہوتی ہے، جب کلیسیا یسوع مسیح میں پڑھنا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر خدا کے خادم کا دعا کرنا، خدا کے حضور شکر گزاری کرنا فرض ہے۔ آمین۔ اب اگر میں دیکھوں جتنے بھی یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے؟ ہاں، کون کہہ رہا بڑھ رہا ہے؟ آپ کا بڑھ رہا ہے، زبردست۔ اور سب کا بڑھ رہا ہے، اور بڑھنے سے آگے وہ بڑھ کیوں رہا تھا؟ پھر وہ چیزیں آپ کی نظر آنی چاہیے آپ کی زندگی میں، پھر پتا چلے گا کہ آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے۔ آمین۔ آمین۔ اب یہاں پر مقدس پولس کیا فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان کیا ہو رہا ہے؟ بڑھتا جاتا ہے۔ اسی لیے مقدس پولس فرماتے ہیں میں شکر کرتا ہوں۔ اگر آج تک 10 سال سے ورشپ کی جا رہی ہے، عبادت کی جا رہی ہے، وہی روٹین ہے چرچ آنے کی، وہی روٹین ہے دعا کرنے کی، بپتسمے کے بعد وہی روٹین ہے کہ بس ٹھیک ہے بپتسمہ لے لیا تو اس کے بعد کوئی فکر فاقہ نہیں، خدمت لی ہے، بڑے نہیں ہیں تو کبھی بھی خدا خوش نہیں ہونے والا، کبھی بھی خدا خوش ہونے والا نہیں ہے۔ انسان کیوں بیج بوتا ہے زمین پر؟ کسی بھی آپ فصل کو اگاتے ہیں کس لیے؟ تاکہ وہ بڑھے، تاکہ وہ کیا ہو؟ بڑھے، اتنی بڑھے کہ ہم اس سے خوراک بھی لیں، اس سے اپنے بچوں کے لیے بھی ذخیرہ کریں۔ آمین۔ خدا کا کلام اسی لیے بکھیرا جاتا ہے کہ یہ ہماری زندگیوں میں بڑھے، اسی لیے خدا کا کلام سنایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ یہ میری زندگی میں بڑھے، آپ کی زندگی میں بڑھے۔ اگر خدا کا کلام ہم نے سنا اور عمل نہیں کیا، اگر خدا کا کلام سنا ایمان نہیں بڑھا، تو اس کا مطلب ہے جیسے بیج آپ زمین کے اندر بو دیتے ہیں،
तो अगर तो वो बीज निकल आए तो आपके चेहरे की जो रंगत है वो खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाती, क्योंकि बीज जमीन से क्या हुआ है? हाँ, बढ़ गया। जवाब दो, बीज जमीन से क्या हुआ है? बढ़ गया, निकल आया, जमीन को फाड़ कर वो बीज निकल आया। आमीन। फिर हमारे चेहरे के जो असरात हैं वो अलग हो जाएंगे, उसी वक्त उसी लम्हे चेंज हो जाएंगे। अगर ऐसे है ना तो ऐसे होना शुरू हो जाएगा, स्माइल आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत क्या हुआ है? बढ़ आई है, बीज निकल आया, आपको उम्मीद आई है कि अब उम्मीद हो चुकी है कि अब कुछ होगा मेरे लिए। आमीन। क्योंकि जमीन से वो दरख्त, वो पौधा, वो बीज निकल आया। आमीन। आमीन। तो इसी तरह खुदा जब अपने कलाम को नाजिल फरमाता है, जिंदगियों के अंदर खुदा भी वेट करता है। खुदा क्या करता है? वेट करता है कि इस बेटी के अंदर आज कलाम हुआ है, इस बेटे के अंदर आज कलाम हुआ है, और खुदा भी इंतजार करता है कि वो कलाम अंदर से निकले। आमीन। जब आप कलाम सुनकर सुनाएंगे तो वो अंदर से निकलना होता है। आमीन। पढ़कर खुदा का कलाम दूसरों को बताएंगे तो वो अंदर से निकलना होता है। अंदर के सारे अज़ाओं को फाड़ कर, इब्लीसी उन बंधनों को जो अंदर लगे हुए हैं फाड़ कर जब वो कलाम निकलेगा तो खुदा आसमान पर खुश होगा। आमीन। खुदा आसमान पर क्या होगा? खुश होगा जब कलाम अंदर से निकलेगा। जैसे जमीन में से बीज निकलता है तो रेल खुदा का कलाम है। आमीन। जब ये अंदर से निकलेगा तो फिर आसमान पर तब खुशी होगी कि मेरा बंदा, मेरी बंदी जाकर खुदा के कलाम को क्या कर रही है? पेश कर रही है। आमीन। तो अगर बीज नहीं निकला तो क्या होगा? क्या होगा? खुशी होगी? परेशानी होगी। चलो तुहानू सादे लफ्ज़ां च समझा देने आ। महीना पूरा काम करो तो तनख्वाह ना मिले, की होएगा हालात? हाँ, इसी तरह महीना पूरा खुदा का कलाम सुनते रहे, पूरा महीना खुदा का कलाम सुने और एक भी बात खुदा को आप बताए ना कि मैंने ये किया, तो खुदा खुश होगा? नहीं होगा। जो कलाम हम सुनते हैं उसे याद रखा करें, वो दिल में रखे, कम से कम एक हफ्ता तक याद होना चाहिए। आमीन। आमीन। और जब खुदा का कलाम आपके अंदर होगा ना, बाइबल मुकद्दस आपके पास हो या ना हो, आपकी जुबान कभी भी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आपके अंदर कलाम है। इसकी वजह से खुदा ने कहा कि इस तुमार को ले और खा ले, निकल जा। क्यों भाई? कि जब कुछ भी ना तेरे पास हो, ये कलाम अंदर से निकले, जो बाहर से जाएगा वो अंदर से फिर क्या होगा? निकलना शुरू हो जाएगा। मुझे और आपको जरूरत है खुदा के कलाम को निकालने की। आमीन। आमीन। जब निकालेंगे तो फिर कुछ उसमें डालेंगे भी, जब निकालेंगे नहीं तो पड़ा पड़ा क्या होगा? फिर जंगाल ही लग जाता है। ऐसे होता है, पड़ा पड़ा खराब ही होता है। बीज जब जमीन के अंदर बो देते हैं, जब बाहर ही नहीं निकलेगा क्या होगा? वो अंदर ही सड़कर मर जाता है। वो अपनी पहचान क्या होता है? भूल जाता है, खो जाता है, खत्म हो जाता है। जब तक आप और मैं खुदा के कलाम को सुनकर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, कब उस वक्त तक हम बरकत नहीं पाने वाले। हम सुनेंगे जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते जाते हैं, जेड़े बच्चे ने ट्यूशन नहीं जाना है, उस बार बार उस जो सबक उसे मिला उसे प्रैक्टिकल नहीं करेगा, उसकी एक्सरसाइज नहीं करेगा, कभी भी वो आगे बढ़ नहीं सकता। क्लास जाता रहेगा पर फेल होता रहेगा। एक वक्त आएगा टीचर कहेगी हूं तो बाबा बड़ा हो गया तो चल बाहर। ऐसा ही है। इसी तरह खुदा है, जब आप कलाम सुनते रहेंगे और अमल नहीं करेंगे, एक वक्त आएगा सुन के तो ही सुनो या ना, पर असर नहीं होगा। कलाम सुने, उसको अपनी जिंदगी में रेगुलर लें। जो चर्च नहीं आए उनको बताएं, जो आपके साथ कभी गुफ्तगू हो आसपास के पड़ोसियों के साथ, उसे बताएं ये कलाम निकालना अंदर से। लेकिन जब हमारी गुफ्तगू होती है आसपास के पड़ोसियों के साथ, उन्हें आ कर दिता ही, उन्हें आ कर दिता ही, हाँ मैं भी वेंदी रही, हाँ मैं भी वेख्या ही, ये हमारी गुफ्तगू होती है। जब भी किसी के साथ बैठे, जो कलाम आपने सुना ना इतवार को, उसे बताएं और उससे पूछे आपने क्या सीखा है। आमीन। ये कलाम को निकालना अपने अंदर से। आमीन। आमीन। फिर देखिएगा आजमा कर आपको खुदा नया कलाम देगा।
हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं कि तुम्हारा ईमान बढ़ता जा रहा है। अब मुझ पर फर्ज है कि मैं खुदा का शुक्र करूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कलीसिया के अंदर ईमान बढ़ रहा है, कलीसिया ईमान में मजबूत हो रही है, कलीसिया खुदा के साथ चलने में मजबूत हो रही है। अब मैं खुदा का शुक्र करूंगा। आमीन, आमीन। अब उस पर यह फर्ज है, जब किसी खादिम के पास जो लोग उसके सुपुर्द किए जाते हैं, तो जब वो कलीसिया ईमान में बढ़ती है, वफादारी में बढ़ती है, तो खुदा के खादिम का भी काम वो शुक्रगुजारी करे। आमीन, आमीन। आगे पढ़ें जी जरा। यहाँ तक कि हम आप खुदा की कलीसियाओं में तुम पर फख्र करते हैं। यहाँ तक कि हम आप खुदा की कलीसिया, यानी कि और जगहों पर जो कलीसिया कायम थी, जैसे यहाँ पर तसलीकियों की कलीसिया, करंथस की कलीसिया, दूसरी दीगर कलीसिया, रोमियों की कलीसिया, अलग अलग कलीसियों के अंदर जाकर मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं, हम फख्र करते हैं कि तसलीकियों की कलीसिया ईमान में क्या हो रही है? ईमान में क्या हो रही है? ईमान में क्या हो रही है? बढ़ रही है, मजबूत हो रही है, खुदा के साथ वफादार हो रही है। तो फिर वो जाकर गवाही भी देते हैं। आमीन, आमीन। अक्सर देखा होगा आपने, खुदा के खादिम अपनी अपनी कलीसिया के बारे में बड़ा खुशी के साथ क्या करते हैं, बताते हैं कि मेरी कलीसिया के अंदर इतने एल्डर हैं जो इतनी वफादारी के साथ काम कर रहे हैं। बताते हैं कि नहीं? मेरे चर्च में इतने मुबशर हैं जो बड़ी वफादारी के साथ काम कर रहे हैं। मेरे चर्च के अंदर इतनी बहनें हैं जो वफादारी के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं भी बताता हूँ कि मेरे पास भी हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है। हाँ, मैं भी बताता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास भी हैं, और मैं भी, हमारे पास टाइम ही नहीं है गिरजे में रोज आने का। मैं भी बता देता हूँ ऐसे। अब यहां पर वो फरमा रहा है कि तुम्हारा ईमान बढ़ता और आपस में मोहब्बत भी ज्यादा होती जा रही है। ये बात मुझे बड़ी मजे की लगी। अब वो फरमाता है ईमान के बाद मोहब्बत भी बढ़ रही है कलीसिया के अंदर। और आज बेशुमार 10-10, 20-20 सालों से लोग गिरजे के अंदर हैं, लेकिन साथ बैठे हुए का नाम नहीं पता किसी को कि यार 10 साल से ये बंदा मेरे साथ बैठ रहा है, इसका नाम क्या है? मोहब्बत क्या है? कलीसिया के अंदर मोहब्बत नहीं है, इसीलिए तो बदन तरक्की नहीं कर रहा मसीह का। बेशुमार हैं जो 10 साल से एक ही गिरजे में जा रहे हैं, लेकिन वहां उनको एल्डर ज़बान के नाम नहीं पता। यहां पर मुकद्दस पौलुस फरमा रहे कि मैंने ईमान में भी देखा और मोहब्बत में भी आपको देखा कि आप मोहब्बत में भी ज्यादा हो रहे हैं। और इस कलीसिया के अंदर मोहब्बत का होना लाजिम है। हर एक दुख दर्द को समझना आपके लिए लाजिम है, फर्ज है। इसीलिए पौलुस रसूल ने जब कलीसिया के अंदर देखा कि ये मोहब्बत भी इनके अंदर है, ईमान अलग है, मोहब्बत अलग है। ईमान तो शैतान भी रखते हैं, खुदा एक ही है तो थड़थड़ांदे ने काम दे डरते। ईमान को प्रैक्टिकल करना उसके बाद मोहब्बत में है। आमीन। जब ईमान होगा मजबूत, उसके बाद दूसरा स्टेप होगा मोहब्बत का, जो पौलुस रसूल ने देखा और उसने जाहिर कर दिया कि मैंने देखा कि ईमान भी आपका बढ़ रहा है, मोहब्बत भी बढ़ रही है, अब मैं खुदा का शुक्र करूंगा। आमीन। कि बीज जो है फलदार साबित हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीज क्या हो रहा है? अब यहाँ पर वो फरमाता है, यहाँ तक कि हम आप खुदा की कलीसियों में तुम पर फख्र करते हैं। आमीन। जितने जुल्म और मुसीबत तुम उठाते हो, उन सब में तुम्हारा सब्र और ईमान जाहिर होता है। आमीन, 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 आमीन। अब यहाँ पर वो क्या फरमा रहे हैं? यहाँ तक कि हम सारे चर्चों में जाके फख्र करते हैं
سارے گرجیاں چ جا کے وہ پاسٹر خوش نصیب ہے جڑا فخر کرے کہ میری کلیسیا ایمان چ بڑھ رہی ہے. آمین. وہ خوش نصیب لیڈر ہے جیسے یہاں مقدس پولس اس کلیسیا کو، تسالونیکیوں کی کلیسیا کو لیڈ کر رہا ہے اور وہ کلیسیا ایمان میں بڑھ رہی ہے، محبت میں بڑھ رہی ہے. جا کے وہ پھر الگ الگ جا کے گرجوں کے اندر بتا رہا ہے کہ یار تسالونیکیوں کی جو کلیسیا نا وہ بڑھ رہی ہے. ساڈا اج کل کی ہوندا وہ یار میرے چرچ 4-5 فیملیاں ود گئی ہیں، ہماری یہ ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن اس کی یہ نہیں ہے، اس کی گفتگو فرق ہے. وہ کہہ رہے کہ کلیسیا کے اندر محبت بڑھ گئی ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ لوگ بڑھ گئے ہیں، اس نے کہا کلیسیا کے اندر محبت بڑھ گئی ہے، ایمان بڑھ گیا. یہ ترقی ہے، یہ چرچ کا بڑھنا ہے. اس میں کلیسیا جب تک نہیں آئے گی تب تک کلیسیا آسمان کی بادشاہی کے لائق نہیں ہوگی. آمین. اب یہاں پر وہ فرما رہے یہاں تک کہ میں ساری جگہوں پر جا کر فخر کرتا ہوں کہ تسالونیکیوں کی کلیسیا کے اندر یہ باتیں نہیں ہیں جو اس کلیسیا کے اندر ہیں. ان کے اندر ایمان بھی ہے، محبت بھی ہے. اور اس کے بعد وہ فرماتا ہے کہ جتنے ظلم اور مصیبتیں تم اٹھاتے ہو ان سب میں تمہارا صبر اور ایمان ظاہر ہو رہا ہے. آمین. محبت کے بعد کیا ہے؟ ظلم، مصیبتیں. آمین. آمین. اب وہ فرماتا ہے کہ جہاں مصیبتاں دے وچ بھی تسی رہ کے محبت نو قائم رکھیا نا، یہ صبر اور ایمان ظاہر ہوتا ہے. آمین. اگر کوئی کلیسیا کا حصہ بن کر یسوع مسیح کی خاطر ظلم سہ رہا ہے نا تو وہ بادشاہی دے لیے تیار ہو رہا جی. آمین. آمین. تے جے مصیبتاں ہی چک رہے اپنے شوقاں دے وچ تے پھر وہ کوئی نہیں ہے. مت سوچو کہ میں یسوع واسطے کچھ کر رہا. وہ ہماری اپنی خواہشیں ہیں، وہ ہماری کیا ہے؟ اپنی خواہشیں. ان میں ہم مصیبت اٹھا رہے ہیں، اس میں ہمیں آسمان سے کچھ بھی اجر ملنے والا نہیں ہے. آمین. مصیبت وہ جو یسوع کی گواہی کے لیے اٹھائی جائے، اپنا آپ یسوع کے لیے دیا جائے، پھر آپ کو کوئی برا بلا کہے تو پھر آپ مبارک ہیں. مقدس پطرس رسول فرماتے کہ اگر کوئی شخص برا کرتا ہے مکے کھا رہے تو کی فخر ہے؟ کچھ نہیں، کیونکہ اپنی کیتی کا بدلہ آ رہا ہے. ہاں اگر کوئی شخص مسیح کے لیے اپنی زندگی دے چکا ہے، مسیح کے لیے بھوکا رہنا شروع کر دیا، مسیح کے لیے دعا کو سب سے زیادہ اول درجہ دیا، خدا کو سب سے زیادہ اول درجہ دیا، آپ نے بے شمار اپنے کام چھوڑ کر یسوع مسیح کو اول درجہ دیا، پھر آپ کا آسمان پر اجر ہے. آمین. آمین. تو ساری کام کاج کر کے بھی مصیبت دیکھو خدا بندہ واسطے مصیبت چپ رہا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہے. مصیبت وہ جو یسوع کے لیے آپ اٹھائیں. آمین. کچھ اس کے لیے کرے تو پھر اب یہاں پر وہ فرماتا ہے یہاں تک کہ ہم آپ خدا کی کلیسیوں میں تم پر فخر کرتے ہیں جیسے ظلم اور مصیبت تم اٹھاتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ وہ کلیسیا ظلم میں بھی ایمان میں مضبوط تھی. آمین. ظلم بھی برپا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، ننگا پن ہے، کال ہے، جو کچھ بھی ہے وہ پھر بھی خدا میں مضبوط ہے. اسی لیے تو خدا کا بندہ فخر کر رہا ہے. آمین. ایسے ہوتی ہے کلیسیا. آج جیسی کلیسیا نہیں ہے کہ تھوڑی سی مصیبت دکھ آئی تے چکیا تے کسی ہور پاسے نو تر پے. اے بابا بڑا سیانا جی، جیڑا کام اس بابے دے ہاتھ دے دوجے تیجے دے وچ کوئی نہیں جی، لیکن وہ بھوکے پیاسے ننگے جیسے بھی حالات ایمان میں مضبوط ہے. آمین. جیسے مقدس پولس فرماتے ہیں کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ کال کہتا کال نہیں کر سکتا، جنہ مرضی کال پہ جائے. آمین. تلواریں، خطرے یا موت، انہوں پتہ ہی میری موت بھی ہوئی تو جانا تو میں یسوع کو، یہ ایمان ہے. آمین. 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 اب وہ کلیسیا ظلم اور مصیبت اٹھاتے ہوئے، جب آپ ظلم اور مصیبت میں بھی اول درجہ خداوند کو دیں گے تو یاد رکھے آسمان پر آپ کا اجر ہے. آمین. 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 اور آگے وہ فرماتا ہے ان سب میں تمہارا صبر. سب باتوں کے بعد صبر بھی بڑا ضروری ہے. اگر صبر نہیں ہے نا زندگی کے اندر تو
फिर हम बेफायदा उसकी हमद कर रहे हैं। सबर से क्या मुराद है भला? जी, इंतजार करना है, बर्दाश्त करना। और दसो जरा सारे थोड़ा थोड़ा। इंतजार करना है, इंतजार करना और हाँ सबर करना है। वो दसो रहा बजे बंदे हो जी। भाई बोलेंगे जी, मैं आज भाइयों से मुखातिब साहब। सबर से ईमान पैदा होता है। आमीन। आगे बर्दाश्त करना है। गुड, सबर सबर जबरदस्त। आगे जी विक्की। कोई गाल काट दे तो बर्दाश्त कर। हाँ गुड, ऐसा ही है। अब लफ्ज जो है ना सबर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਬਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤਾਰ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਸਬਰ ਕਰੋਗੇ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਿਓ, ਸਬਰ ਕਰਿਓ, ਘਰ ਆ ਜਾਓ। तो जो बेटा घर आ जाता है वो बच जाता है, तो जरा सबर नहीं ना करता वो साथ अम्मा अब्बे को ले डूबता है। ऐसा होता है कि नहीं? अब यहाँ पर मुकद्दस पलूस फरमाते कि जो लोग तुम पर जुल्म कर रहे हैं, जब कलीसिया बढ़ रही थी, अब ये यहाँ पर ऐसे नहीं हुआ। आज तो हम बड़े खुशी के साथ बैठे, उस कलीसिया के पास जगह नहीं होती थी दुआ करने के लिए। दुआ कर रहे ने, उधरों फकीर आ गए ने, दूसरी जगह गए तो फरीसी आ गए ने, कोई रोमी सिपाही आ गए ने, अलग अलग कौमां दे लोग आकर उन्हें तंग करते सन। अलग अलग लोग आकर उनको तंग करते, उनको बुरा भला कहते। तो मुकद्दस पलूस फरमाते तुम्हारा सबर, जुल्म सहकर भी औरतों ने अपने बच्चों को जिंदा जलते हुए देखा। जब मसीहत फैल रही थी शुरुआत के दिनों में, लोगों ने क्या किया? जालिमों ने बच्चों को छीना और शेरों के आगे फेंक दिया। फिर भी उनका ईमान नहीं डोला, फिर भी वो जुल्म बर्दाश्त करते रहे और आज पूरी दुनिया के अंदर मसीहत कायम और दायम है। आमीन आमीन। क्या कहा उन्होंने? मुकद्दस पतरस और यूहन्ना को यीशु दा नाम लेके मुनादी ना करो। इसका मतलब है कि बड़ी सख्त वक्त था उस वक्त मुनादी करना, और आज भी है। लेना बाहर नाम, देखिए क्या हालात होते हैं। लेकिन लोग फिर भी अपनी जगह पर जहां जहां भी कोई सेट है वहां वहां यीशु की गवाही देते जा रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। अब यहाँ पर वो कहता जुल्म और मुसीबत उठाते और सबर और ईमान। सबर दे विच सबर करोगे तो ईमान जाहिर होएगा। आमीन। सबर नहीं करेंगे ईमान कभी भी जाहिर नहीं होगा। मिसाल के तौर हुण सादे लफ्जां च दुआ कराइए, पादरी साहब को इंतजार नहीं किया, सबर नहीं किया, या एक डॉक्टर को दवाई लाइए, इंतजार नहीं किया, सबर नहीं किया, चुक दूजे को, ऐसे ही है। तो क्या होगा? वो जो पहले खाई है उसमें कुछ सबर नहीं किया, इंतजार नहीं किया कि चल यार मैं 10 मिनट वेख ही लेना, की बार दवाई असर करना शुरू कर। इसी तरह यहां पर उसने फरमाया कि सबर और ईमान जाहिर हुआ है। आमीन। सबर के जब आप सबर करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, दुआ करके खुदा के हुजूर बैठे रहेंगे, वक्त आएगा खुदा आपका ईमान बढ़ाएगा। आमीन 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 आमीन। ईमान बढ़ता है सबर से। जब आपकी जिंदगी के अंदर सबर नहीं है, ईमान नहीं है। आमीन जी। आगे पढ़े जरा जल्दी से। ये खुदा की सच्ची अदालत और साफ निशान है, ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। आमीन। अब ये पलूस रसूल ने कहा कि ये खुदा की बादशाही, ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है। ये खुदा की बादशाही यानी कि सच्ची अदालत का क्या है? साफ निशान है कि खुदा दी अदालत दा साफ निशान नजर आ रहा है कि कलीसिया ईमान च वध रही है। आमीन। कलीसिया ईमान च वध रही है, कलीसिया जुल्म बर्दाश्त कर रही है, कलीसिया हर तरीके की ठोकर बर्दाश्त कर रही है, तो सबर ते ईमान दे विच मजबूत है। मुकद्दस पलूस फरमांदा ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान नजर आ रहा है कलीसिया के अंदर। आमीन। सच्ची अदालत दा ते जेड़ी खुदा दी अदालत है ना, वो सच्ची ते बरहक है। इत्थे ते पैसे पूए दे के काम मामला रफा दफा हो जाता ना, ते उत्ते कुछ भी होने वाला नहीं जी।
वहां कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तो लिखा भी मिट जाता है, ठीक है जी माफी हो गई, लेकिन उस वक्त ऐसा होगा जब अदालत लग जाएगी, फिर कुछ भी होने वाला नहीं, उससे पहले पहले। आमीन आमीन आमीन। उससे पहले पहले ही हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। आमीन। ये फरमाता है, ये खुदा की सच्ची अदालत का साफ निशान है ताकि तुम खुदा की बादशाही के लायक ठहरो। तुम खुदा की, कहे कि मैं खुदा की बादशाही के लिए लायक ठहरूं। कहे जरा, बोले मैं खुदा की बादशाही के लायक ठहरूं। कब ठहरूंगा? जब सब्र और ईमान मुझ में बढ़ेगा। आमीन आमीन। अब वो फरमाता है जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। इसका मतलब है ये आरे गहरे नथु खैरे कोई नहीं। असी बुलाए गए खुदा दी बादशाही वास्ते, असी बुलाए गए आसमानी बादशाही दे वास्ते। कह रहा जिसके लिए तुम बुलाए भी गए हो, इसका मतलब हम कोई अलग ही मखलूक है। हालेलुया। तो आसमान की बादशाही के लिए बुलाए गए, किसी और से नहीं कहा कि तानू आसमान की बादशाही वास्ते बुलाया गया। आमीन। अब ये वही थे जो वहां कलाम सुन रहे थे, और आज आप यहाँ जो सुन रहे हैं, आप खुदा की बादशाही के लिए बुलाए गए हैं। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला हमें बरकत दे। नेक्स्ट हम फिर इसी